محمد مولے محمد. کلام شروع کرنے سے پہلے ایک شعر مجھے یاد آ گیا تو میں بسم اللہ. لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ لا ڈھونڈ رہے ہیں, لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ لا ڈھونڈ رہے ہیں, صدیوں سے خبر ہی نہیں کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حب خدا بندی ہے یا بغض علی ہے, جو مل کے بھی علی سے خدا ڈھونڈ رہے ہیں. آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد مولے محمد. علی کی باتیں میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. علی کی باتیں میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. علی کی باتیں میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. اسی علی کو تو مانتا نہیں, اسی علی کو تو مانتا نہیں, کہ جس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. علی کی باتیں میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. علی بنا تو نہ یہ جہاں ہے, نہ وہ جہاں ہے خدا ہی جانے. علی بنا تو نہ یہ جہاں ہے, نہ وہ جہاں ہے خدا ہی جانے. علی کا منکر جہنمی ہے, علی کا منکر جہنمی ہے, علی کا منکر جہنمی ہے. تو کن ہواؤں میں چلے باتیں میری عبادت, دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. علی کا آنا خدا کے گھر میں, تیری ولادت ہے کچرا خانہ. علی کا آنا خدا کے گھر میں, تیری ولادت ہے کچرا خانہ. جا اپنے والد کو ڈھونڈ کے لا, جا 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 اپنے والد کو ڈھونڈ کے لا, کہ جس کا اب تک پتہ نہیں. میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. میرا نعرہ نعرے ولایت, تیرا ولی ہے تو دکھا دے. میرا نعرہ نعرے ولایت, تیرا ولی ہے تو دکھا دے. تیرا تو ممبر سے ایسے بھاگے, تیرا تو ممبر سے ایسے بھاگے, سراغ اب تک نہ مل رہا. علی کی باتیں میری عبادت, تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے. علی کا نعرہ میری غذا ہے, علی کا منکر تو مر رہا ہے. علی کا نعرہ میری غذا ہے, علی کا منکر تو مر رہا ہے. میرے تو چہرے پہ رونق, میرے تو چہرے پہ رونق, میرے تو چہرے پہ رونق ہے. خوشی سے تن من مچل رہا ہے. رحمت اللہ بخاری اور دشمن علی لانا کی باتیں میری عبادت, تم دل ہی دل میں کیوں جل رہا
علی کے منکر کی ایک سزا ہے کہ لعنتوں میں گرا پڑا ہے، علی کے منکر کی ایک سزا ہے کہ لعنتوں میں گرا پڑا ہے، ہمارے گھر پر جنت کا سورج، ہمارے گھر پر جنت کا سورج علم کی چھاؤں میں مولا کائنات کے دشمنوں پہ کی باتیں میری عبادت، تو دل ہی دل میں کیوں جل رہا ہے بات شاہد نے یہ بتایا، وہ ہے حقیقت سنو مسلمان، ہے بات شاہد نے جو بتایا، وہ ہے حقیقت سنو مسلمان، علی کے دشمن کے دن ہے تھوڑے، علی کے دشمن کے دن ہے تھوڑے، علی کے دشمن کے دن ہے تھوڑے، تبر سے اب پگھل رہا محمد بلند تک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے،
حسین لائلہ کی زندگی، حسین انبیاء کی بندگی، لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں، لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لائلہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زوال در سگاہ حسین ہے، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کسی کے سینے پر، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کسی کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال در سگاہ حسین ہے، اے ہاشمی جوانو کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلند ایک مرتبہ اور درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس اس معصومہ شام بیوی سے مناسبت رکھتی ہے جس کی قید سے رہا ہو کر گھر واپس جانے کی حسرت شام کی زندان میں ادھوری رہ گئی۔ اسی پاک معصومہ بیوی کی شہادت پہ ایک سلام اس کے شمشاد۔ زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا، اب یہاں سے چلو گھر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر،
نیل رخسار کے کانوں کا لہو تازہ ہے، کچھ میرے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے، رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر جاؤں گی گھٹ گھٹ کر میں، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، اپنی گودی میں سلا لو مجھے باری اماں، سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر بدر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی آ پہنچی، ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی آ پہنچی، خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا حیدر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، نیند آتی نہ تھی
شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی چین سے سوں گی زندان سے جب جاؤں گی گھر زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد آل محمد۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ خدمت کا موقع دیا، حاضری کا موقع دیا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ قبلہ کو سنیں گے، میں خود ان کو سنتا ہوں بڑے شوق سے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنیں گے۔ 4 لائنوں سے آغاز کرتا ہوں کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو۔ واہ 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 واہ، منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو۔ واہ 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 واہ، منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، ان سب کو ایک بار مر تو لینے دو۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ میں نے کہا کہ ان سب کو ایک بار مر تو لینے دو، میں ایک لفظ بدل کے پڑھتا ہوں اور لفظ کا لطف لیجئے گا کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، مقصرین کو ایک بار مر تو لینے دو۔ بہت شکریہ جناب۔ ایک بواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم کا اعلان سنایا تو برا مان گئے، نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی وہ قبلہ کی کال آ رہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے تو معذرت چاہتا ہوں اس وجہ سے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے گا بواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قصیدہ سنا رہا تھا آپ کو خم غدیر کا، غدیر کا قصیدہ، مولا کی ولایت کا۔
हम का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए, हम का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए, हाथ है दर का दिखाया तो बुरा अब देखिएगा ये रेपिटेशन रदीफ है, बार बार आएगा, बुरा मान गए, कहाँ का बुरा मान गए, कौन कौन बुरा मान गए। देखिएगा, हम का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए, पहले कहते थे बना दो कोई रहबर हम पे, आपके बाद खुदा मारे न कंकर हम पे, मौला हैदर को बनाया तो बुरा उनका ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए, हम का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए। और शेर सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा शेर। पहले कहते थे शुजाअत है अली का चेहरा, देखना भी है इबादत या अली का चेहरा, वही चेहरा जो दिखाया तो मान गए। उनका ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए, सबकी हसरत थी मोहम्मद को मनाए कैसे, सोच में रहते थे मरहब को गिराए कैसे, शेर यज़दा ने गिराया तो हम का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए। लो जी शेर सुनिएगा, इस शेर के लिए मैं आपको एक कसीदा सुना रहा था और नतीजा देखिएगा, बड़ा ही प्यारा शेर। मुस्तफा ने था कहा जिसको कलम देने को, वो भी खैबर में थे मौजूद अलम लेने को, वो अलम हमने लगाया तो उनका ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए। ना मार सकीना को तमाचे या सितमगर, ना मार सकीना को तमाचे या सितमगर, एहसास यतीमी ही बड़ी सख्त सजा है। करबला तो शाम तक जिथे कोई उच्च झक बनी है, जिथे कोई औखा टाइम आया, जनाब सकीना जनाब सज्जाद दे कोल आके ना, सज्जाद क्यों रोना, मैं तेरे नाल नहीं। लईन दा दरबार है, जिस टाइम कई अजाना गुजर गई है ना, रुनी है मेरी सैन बिरा दे पास वे कह दिए सज्जाद बिरा होने थक पईया, सज्जाद बिरा होने थक पईया, निर्वार को कितनी देर पूछ शिमर को लो मैं बेवन जाऊं, मेरे दर्द करे दिन परे। रुना सज्जाद इमाम रो के आदाई नाम हजा तकसीम पथी दे, तेरे प्यो दे कातिल डेरे, सैयदा दे जा लुट कर दिया बड़िए वो, साढ़े बाण को काफी देरे। नहीं पढ़दा पूरा मजमून, बहन दा लाशा चाया सू,
शाम दे बाजार चा क्या दे मैं लोगो सजादा दे मैं मोई भेण चाहिए ना एक गठड़ी नहीं जनाजा है मैं हाँ देना ले लाइया ना। किसे जो पूछा सजाद भेण नु कफन क्यों नहीं पवाया रो पया सैयद रो क्या दे कफन पहनदी नहीं आती है मैं दिया बे कफन प्यो दी ताही मैला फटा चोला सकीना को पवैया ना। भेण दे रस्सियां ले हाथ चूम के आंदा हाय ओ मेरी निक्की भेण दे हाथ सकीना दा मैया तड़पे आवाज है मेरे हाथ वेखे तू रो पिया मेरी कंड वेखे तू मर वैसे अली अकबर दी जागीर दे मैं कुछ मार तमाचे मारे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मौला पाक आपका गिरिया हाजिरी ड्यूटी साहब की कबूल फरमाए। मौला पाक यहाँ पे आपका आना कबूल फरमाए। इंशाल्लाह 8, 9 और 10 अक्टूबर को भी किबला अल्लामा सब खिताब फरमाएंगे। जो भी स्केड्यूल होगा टाइमिंग होगी वो आपको इंशाल्लाह बता दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। इंतज़ार शादी आपको बता देंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा वकील विलायत अली, वकील हक जनाब सईदा खतीब विलायत अली किबला काबा अल्लामा आसिफ अलवी साहब से करवाएं और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। वाजिब सलाम मोहम्मद मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए से तो सलामती अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मुल अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वलअन अल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए शहज़ादी कौनैन बतौफ़ैल सरकार करीम करबला
आज की इस मजलिस के मुंतज़िम बानी मजलिस जनाब सैयद अली हैदर की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मेरे मालिक उनके मरहुमीन, नाजरीन के मरहुमीन, हाजरीन के मरहुमीन को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरा मालिक हमारा खातिमा बिल अकीदा बिल ईमान फरमाए। हमारा शुमार जनाब सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में से फरमाए। इमाम ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाइएगा। मुसलसल सैरोज़ा मजालिस में सिलसिला गुफ्तगू अल्लाह के कुरान की उस आया करीमा से है, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। मैं रोज़ाना की मजालिस में आपकी खिदमत आलिया में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसी अल्लाह अपनी अताअत चाहता है वैसी ही अताअत अपने रसूल की चाहता है और वैसी ही अताअत उलिल अम्र की चाहता है। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये अल्लाह की अताअत में मुतहिद रहे, रसूल की अताअत में मुतहिद रहे, लेकिन उलिल अम्र इन्होंने अपनी मर्जी के बना लिए। कल की गुफ्तगू में मैंने आपके सामने ये गुजारिश की थी कि हम अल्लाह के हजूर जितना भी सजदा शुक्र का अदा कर सकें, हम वो सजदा हक अदा ही नहीं कर सकते कि उसने हमें अमीर अल मोमिनीन की विलायत से सरफराज फरमाया, हमें उनकी विलायत जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। यकीन जानिए जिनके पास अमीर अल मोमिनीन की विलायत होती है उन्हें फिर दुनिया हकीर नजर आनी शुरू हो जाती है, उन्हें फिर दुनिया के ताल्लुकात और रिश्ते अजीज नहीं होते। अमीर अल मोमिनीन की विलायत इतनी वजनी चीज है कि जनाब सलमान मोहम्मदी, जिन्हें लोग सलमान फारसी कहते हैं लेकिन रिसालत माब कहते थे इसे सलमान मोहम्मदी कहा करो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो इसे सलमान फारसी कहते हैं। फरमाया फारिस इसका वतन था, उस हवाले से इसे फारसी कहा जाता था, लेकिन अब ये मोहम्मद के दिल में रहता है तो मोहम्मदी कहा जाता है। अब इसका वतन रसूल का दिल है तो जनाब सलमान को उस हवाले से सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। जनाब सलमान मोहम्मदी से आके एक दफा चंद लोगों ने पूछा अगर तू भी खलीफा की बैयत कर लेता तो तुझे भी आज हुकूमत में हिस्सा मिल जाता। इतना कहना था या सलमान मोहम्मदी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा तुम मुझे कह रहे हो कि काश तू बैयत कर लेता, मैं तुम्हें कहता हूं काश तुम अली की विलायत का इकरार कर लेते। उन्होंने कहा कि हमने तो तुझे कहा है कि अगर तू हुकूमत की बैयत कर लेता तो तुझे हुकूमत में हिस्सा मिल जाता, अगर हम अली की विलायत का इकरार कर लेते तो हमें क्या मिलता। अब जवाब सुनिएगा, जो अहबाब इस बात पे परेशान होते हैं कि जिनके पास अली की विलायत नहीं उनके पास दौलत की कसरत क्यों है, उनके सेंटर ज्यादा बड़े क्यों हैं, उनके पास ताल्लुकात ज्यादा क्यों हैं। आइए जनाब सलमान मोहम्मदी की जुबान से मैं विलायत अली की कीमत आपको बताऊं। उन्होंने कहा सलमान मोहम्मदी अगर तू बैयत कर लेता तुझे हुकूमत में हिस्सा मिलता, अगर हम अली की विलायत का इकरार कर लेते तो बता हमें क्या मिलता। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा कसम है मुझे इस खुदा की जिसने सलमान मोहम्मदी के जिस्म में जान को दौड़ाया हुआ है, अगर तुम अमीर अल मोमिनीन की विलायत का इकरार कर लेते तो तुम आसमान की तरफ इशारा करते और परिंदे जमीन पे तुम्हें लब्बैक कहते हुए आ जाते। अगर तुम दरिया के किनारे पे खड़े होके मछलियों को आवाज देते तो मछलियां तुम्हारी पहली सदा पे बाहर आ जाती। इतना कहना था, उन लोगों ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहने लगे ये तो सलमान मोहम्मदी दीवानों जैसी बातें हैं। कभी ऐसा भी होता है इशारा इंसान करे और परिंदे हवा से आ जाएं, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के इशारे से मछलियां समुद्र से किनारे पे आ जाएं। इतना कहना था या जनाब सलमान मोहम्मदी ने अर्श की तरफ निगाह की, आसमान की तरफ देखना था। इसे मैं मोजज़ा कहूं या अम्र अली कहूं, इधर से सलमान का देखना था या परिंदों का गौर सलमान के सर से गुजरा। जनाब सलमान मोहम्मदी ने उन्हें उतरने का इशारा नहीं किया, मुंह आसमान की तरफ करके कहा देख नहीं रहे अली के नौकर को झुटलाया जा रहा है। इतना कहना था या आसमान के परिंदे सलमान मोहम्मदी के कदमों में गिरते जा रहे थे और कहते जा रहे थे लब्बैक या सलमान, लब्बैक या
सरकार हजरत अबू जर गफारी जुंद बिन जनादा, इनसे कहा गया कि आप बताइए कि आपके पास अली की विलायत है तो क्या है। या जनाब अबू जर का जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। जनाब अबू जर ने कहा, जनाब अबू जर से जब पूछा गया तो उनके हाथ में एक छड़ी थी। जनाब अबू जर गफारी ने उस छड़ी को आसमान की तरफ करके कहा, मुझे अली की विलायत की वजह से इस कदर मुअस्सर हो चुका हूं, अगर मैं छड़ी के साथ इशारा करूं तो मैं आसमान को जमीन पे उतार सकता ये है अलीयुन वलीउल्लाह का फैज। और फिर जनाबे अमार यासर से जब पूछा गया, ए अमार तू बता तुझे अली की मोहब्बत से क्या मिला है, अगर तू हुकूमत की बैयत कर लेता तो शायद तुम्हें खजाने मिल जाते। जनाब अमार की आवाज आई कि मुझे अली की विलायत ने दुनिया के खजानों से बेबहरा करके अली की विलायत ने इतना गनी कर दिया है कि मुझे दुनिया की दौलत हकीर लगती है। कायनात के, क्योंकि आज की ये आखिरी मजलिस है, आखिरी मजलिस में हमें अम्र विलायत भी आपके सामने पढ़ना है और अम्र इलाहिया के जो सबसे बड़े कायनात के मुदब्बिर अल-अमूर हैं, सरकार वारिस जमाना, उनकी जात पे गुफ्तगू करनी। कायनात के हकीर तरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कायनात के हकीर तरीन ज़र्रे एटम से लेके कायनात की अजीम तरीन कहकशां तक हर एक चीज महवे तवाफ है, हर एक चीज तवाफ की हालत में है। और ये साइंस भी तस्लीम करती है कि कायनात की हर चीज किसी मरकज के गिर्द घूम रही है। आप कायनात के सबसे छोटे जर्रे एटम को ले लें तो एटम भी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं। कायनात के सबसे बड़े निजाम को ले लें तो कायनात का सबसे बड़ा निजाम निजाम शमसी है, तमाम सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये सूरज मरकज है? लेकिन हमें आज की साइंस भी बताती है कि सूरज मरकज नहीं, ये तमाम सूरज इकट्ठे होके एक कहकशां के गिर्द घूम रहे हैं। ये तमाम कहकशाएं इकट्ठी होके किसी एक मरकज के गिर्द घूम रही है। लिहाजा ये कायनात की हर चीज किसी न एक किसी मरकज के तहत घूम रही है। कायनात की हर चीज को कोई एक मरकज है जिसके लिए तवाफ कायनात की हर चीज कर रही है। और जब हमने साइंस से पूछा कि क्या सूरज एक है, तो हमें साइंस ने बताया कि सूरज एक नहीं है। ये जिस सूरज से हम रोशनी लेते हैं ये हमारी दुनिया का सूरज है। इस तरह एक कहकशां के अंदर अरबों सूरज होते हैं और अल्लाह की कायनात में कितनी कहकशाएं हैं, हर कहकशां के अंदर कितने सूरज हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे सूरज हैं जो किसी एक का तवाफ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये तमाम सूरज, क्योंकि तमाम सियारे तो सूरज का तवाफ कर रहे हैं, ये सूरज किसका तवाफ कर रहा है? तो फिर मुझे ज़ियारत में एक जुमला मिला, अस्सलामु अलैका या शम्सु शमूस, ऐ सूरजों के सूरज तुझ पे मेरा सलाम। इसका मतलब है कि कायनात के तमाम सूरज इकट्ठे होकर जिसका तवाफ कर रहे हैं उसे साहिबुल अस्र व ज़मान कहते हैं। ये तमाम कायनात के सूरज इकट्ठे होके जिस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं उसे सरकार वलीउल असर कहते हैं। और जिस सूरज से हम रोशनी लेते हैं, अगर मैं इस सूरज की हकीकत बयान करूं तो फिर एक ही जुमले में बयान हो सकती है कि अल्लाह कुरान में कहता है इज़ा शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट लिया जाएगा, फाइज़ा बारिकुल बस्र, और जब आंखें चुंधिया जाएंगी। एक शख्स ने आके इमाम से पूछा, मौला ये सूरज लपेट दिया जाएगा तो आंखें किसकी रोशनी से चुंधिया जाएंगी?
फरमाया जब ये तुम्हारा सूरज लपेट दिया जाएगा तो अली की विलायत के सूरज को तलू कर दिया जाएगा। बहुत मोतबर तरीन ये एक हदीस भी है और बहुत से मसालक इसे नकल भी करते हैं कि हदीस है कि क़यामत का मैदान होगा और जब अल्लाह मखलूकात को इकट्ठा करेगा तो ये तमाम मखलूकात पसीने से शराबूर हो जाएंगी और सूरज सवा नेज़े पे होगा। क़यामत के मैदान में सूरज सवा नेज़े पे होगा। अक्ले इंसानी से मैं सवाल करता हूं कि आज हमसे लाखों मील की मुसाफत पे है सूरज, तो तब हमारे जिस्मों को पसीना आता है। जब ये सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा तो जिस्म बचेंगे तो पसीना आएगा। तो फिर ये कौन सा सूरज है जो सवा नेज़े पे आएगा और इंसानी बदन पसीने में शराबूर हो जाएंगे? अब मौला से पूछा गया था, इमाम से आगे सवाल किया गया था, मौला ये सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा तो सूरज की हिद्दत के साथ, सूरज की तपश के साथ, सूरज की शिद्दत के साथ इंसानी बदन तो जल के राख हो जाएंगे और आप कहते हैं कि इंसान के जिस्मों को पसीना आ जाएगा। मौला ये तो हैरानगी की बात है। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे और हैरान करूं। उसने कहा मौला वो क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ लोग ठंडक महसूस करेंगे। इतना कहना था कि उसने कहा मौला मेरी समझ में नहीं आता, सूरज सवा नेज़े पे होगा, इंसानी बदन तो जल के राख हो जाने चाहिए और आप कह रहे हैं कि इंसान ठंडक महसूस करेंगे। इमाम फरमाते तुम क्या समझते हो ये तुम्हारा सूरज है, ये निज़ाम शमसी का सूरज है? अकल के अंधो, क्या तुम नहीं जानते जब क़यामत को हर चीज फना हो जाएगी तो फिर ये सूरज भी फना हो जाएगा। जब ये सूरज बचेगा ही नहीं तो फिर कौन सा सूरज सवा नेज़े पे होगा? उसने कहा मौला यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क़यामत में तो हर चीज फना हो जाएगी तो फिर क़यामत के मैदान में कौन सा सूरज है जो सवा नेज़े पे तलू होगा? इमाम ने सोर हाज़ा शम्स व विलायत अमीरुल मोमिनीना, अमीरुल मोमिनीना, ये नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब होगा जो क़यामत के मैदान में ऐसे आएगा कि मुनकर जल के राख हो जाएगा और मोमन ठंडक में आ जाएगा। विला का तू एहतराम न कर, मुफस्सिरीने विला का तू एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर और हलालियों के लिए है मैं विलाए, हलालियों के लिए है मैं विलाए, खराब के आगे विला जाओ न कर। सूरज सवा नेज़े पे होगा और बदनों को ठंडक महसूस होगी। फरमाया ये निजाम शमसी का सूरज नहीं, हाजा नूरो विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये अली की विलायत का नूर होगा जो क़यामत के मैदान में ऐसे आएगा। अभी तक तो अहबाब अमाल का हिसाब देने के लिए कल मैंने गुफ्तगू में कहा था कि अभी तक तो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे। इन्हें तो यही खबर नहीं कि हमने क़यामत में किसके हजूर पेश होना है। हमने ये अमाल किसके हजूर लेके जाने। बहुत शोहरा आफाक आपने भी अक्सर सुना होगा कि एक पुल है, पुल सरात है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है और आग से ज्यादा गर्म है। जब हम किसी चीज की बारीकी के लिए कोई मिसाल दें तो जो सबसे बेहतर मिसाल दी जाती है वो बाल की होती है और यहाँ इमाम फरमा रहे हैं कि पुल सरात बाल से ज्यादा बारीक होगा। अगर हम किसी चीज की घाव या किसी चीज की तेजी का इस्तारा इस्तेमाल करें तो तलवार का इस्तेमाल होता है। नसर में, नज़म में और शायर इसे तलवार के जरिए इस्तेमाल करते। फला उसकी जुबान तो तलवार की तरह तेज है, यानी कि तेज चलने के लिए तलवार का इस्तेमाल होता है, बारीकी के लिए बाल इस्तेमाल होता है, शिद्दत के लिए आग इस्तेमाल होती है, यानी ये तमाम चीजें इंतहा हैं। और इमाम फरमाते हैं बाल से ज्यादा बारीक
तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। उसी साहिल ने पूछा, मौला आप बताएं ये बाल से बरी कौन सा पुल है, ये तलवार से तेज क्या है, ये आग से गर्म क्या है? इमाम फरमाते हैं ये अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान कोई ब्रिज या कोई पुल नहीं बनाया हुआ। तो मौला फिर ये क्या है? फरमाया पुल सरा से मुराद है मेरे दादा अली की विलायत। इसमें कायम रहना इतना मुश्किल, मेरे दादा अली की विलायत में कायम रहना इतना मुश्किल है जितना बारीक बाल पे चलना। हमारी विलायत में कायम रहना इतना मुश्किल है जितना तेज तलवार पे चलना। उसने कहा मौला तलवार का इस्तारा क्यों इस्तेमाल हुआ, मिसाल तलवार की क्यों दी गई? इसलिए फरमाया कि तलवार बदन काटती है, हमारी विलायत मुनकर का शजरा नसब काट देती है। मौला ये आग से ज्यादा गर्म क्यों है? फरमाया आग सिर्फ बदन जलाती है और हमारी विलायत मुनकर की रूह को जला देती है। अल्लाह ने, खुदा ने हजरत आदम से लेके, बड़ी सुनने वाली ये बात है, अब आप बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक ये जितने नबी आए इनके जिम्मे था तबलीग अमर विलायत। रिसालत माब से लेके 11वें शहनशाह तक इनके जिम्मे है तजसीम अमर विलायत, और मेरे 12वें इमाम के जिम्मे है नफाज अमर विलायत। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक नबी विलायत के अम्र को पहुंचाते रहे। रिसालत माब से लेके इमाम 11वें शहनशाह तक, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ये उर्दू का मुश्किल लफ्ज था, इसे मैं आसान करता हूं, तजसीम अमर विलायत, यानी कि इन्होंने विलायत को जिस्मों में दिखा दिया। कि अल्लाह का इख्तियार अगर जिस्म में ढल के आए तो कैसे आता है। यही वजह है कि लोग आके पूछते थे कि अल्लाह कैसे बोलता है, ये बोल के दिखाते थे। अल्लाह रिज़्क़ कैसे देता है, ये बांट के दिखाते थे। अल्लाह मुर्दे को जिंदा कैसे करता है, कुरान कहता है कि हजरत इब्राहीम ने भी अल्लाह से पूछा था, मेरे मालिक बता दो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया इब्राहीम तुझे यकीन नहीं? फरमाया यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं। हजरत इब्राहीम भी अपने इत्मीनान के लिए देखते रहे कि अल्लाह मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। इनसे आगे जब मखलूकात ने कहा कि वो मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, इन्होंने कहीं से पूछ के नहीं, इन्होंने ठोकर मार के जगा के दिखाया कि सरकार खत्मी मर्तबत से लेके 11वें शहनशाह तक इनके जिम्मे है तजसीम अमर विलायत। और जब मेरे 12वें शहनशाह का दौर शुरू हुआ है तो मेरे मौला के जिम्मे है निफाज अमर विलायत। मेरे मौला ने अमर विलायत को नाफिज करके दिखाना है। और जब अमर विलायत को नाफिज करना है तो वो कैसे नाफिज करना है? अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, इंसान चाहे तो गुनाह करे, इंसान चाहे तो नेकी करे। लेकिन जब 12वां आएगा तो 12वां इंसान से इंसान का इख्तियार छीन लेगा। दुनिया में सिर्फ अदल होगा, सिर्फ इंसाफ होगा, वो अपने अम्र से बताएगा कि जो हम चाहेंगे वैसा होगा। बड़ी सुनने वाली बात है, जो कुदरत, दो चीजें अल्लाह के निजाम को हमेशा नाफिज करती हैं, एक कुदरत इलाही, एक तदबीर इलाही। जमीन बिछ गई, ये कुदरत इलाही। आसमान का साहिबा लग गया, ये कुदरत इलाही। बारिश अपने वक्त पे बरसती है, ये कुदरत इलाही है। एक चीज है तदबीर इलाही। तदबीर इलाही के लिए किसी मुदब्बिर अल अमूर का होना जरूरी है, जो अल्लाह के इरादे को अमली शक्ल में करके दिखाए।
مثلا میں مثال زیادہ آسان کر دیتا ہوں, ایک چیز لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے, اس نے ایسا ہونا ہے, لیکن خدا نے قیامت تک کے لیے امور لوہے محفوظ پہ لکھے ضرور ہیں, لیکن انہیں بدلنے کا اختیار بھی اللہ نے کسی نہ کسی کو دیا ہوا ہے. کسی کے پاس بدلنے کا ایسا اختیار ہے, وہ چاہے تو رات کو دن, دن کو رات کرے. اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو اب میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں, وہ چاہے تو مرد کو عورت, چاہے تو عورت کو جو کام لکھے ہوئے ہیں یہ قدرت ہے, اور جو کام بدل رہے ہیں یہ تدبیر ہے. تدبیر کرنی ہے کسی مدبر نے, اور اگر کوئی کہے گا کہ مدبر صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدبر ہی نہیں ہے, آؤ قرآن اٹھاؤ, خدا کہتا فالمدبرات امرن, مجھے ان مدبروں کی قسم ہے جو اللہ کے امر کو تبدیل کر رہے ہیں. میں بات اور آسان کر دیتا ہوں, مقدر میں تھا کہ راہب کے بیٹا نہیں, حسین علیہ السلام نے قدرت کو تبدیل نہیں کیا, تدبیر کو بدلا ہے. اللہ قادر ہے, ہم نہیں انکار کرتے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کے پاس قدرت ہے, ان کے پاس تدبیر ہے. اگلی بات بڑی مشکل ہے, لیکن مجھے سامعین کے اذہان عالیہ پہ 2 دن سے یقین ہے, تو اس لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں. ہم کلمے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل. اس کی وضاحت ہمیں کیا دی گئی؟ وضاحت یہ دی گئی کہ رسول کے بعد بغیر کسی فاصلے کے امیر المومنین خلیفہ ہیں, اس لیے ہم علی کو خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں کہ رسول اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور علی کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں. اللہ اپنے, میں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ اللہ کے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں, وہ کس لیے فاصلہ نہیں کہ قدرت اور تدبیر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اللہ کا کام ہے صرف ارادہ کرنا, امر کرنا ان کا کام ہے. مثلا خدا کوئی بھی کام برائے راست سر انجام نہیں دیتا. آج کی مجلس میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے گا, اس پہ ہزاروں دلائل میں کھڑے کر سکتا ہوں کہ خدا نے سوائے تخلیق محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی کام براہ راست سر انجام نہیں دیا. اللہ نے صرف محمد و آل محمد کی خلقت یہ براہ راست سر انجام دی. اللہ اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اگر ہم اللہ اور ان کے درمیان فاصلہ رکھ لیں گے تو اللہ کا فیض ہم تک پہنچانے کے لیے فاصلہ آ جائے گا. اشارہ دینے لگا, ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے سورج کی روشنی. سورج کی روشنی ہمیں ملی ہے سورج کی شعاع سے. شعاع اور سورج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہمارا شعاع اور سورج کے درمیان ہمارا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. شعاع کا سورج سے کوئی فاصلہ نہیں. شعاع نکلتی بھی سورج سے ہے, چھپتی بھی سورج میں ہے.
शुआ है वासिता फैज, वसीला फैज। सूरज है मरकज फैज, हम हैं सूरज से फासले पे, हम उस तक जा नहीं सकते, हमें चाहिए उसकी रोशनी। वो आएगा तो हम जल जाएंगे, आएंगे तो हम जल जाएंगे। अगर इसकी एक मिसाल कुरान से मैं दे दूं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मूसा के साथी भी चाहते थे कि उस तक बगैर वसीले के पहुंच जाएं। सारे जल गए। मूसा के साथियों के जलने की वजह ये थी कि वो बगैर वसीले के अल्लाह से मिलना चाहते थे, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि मूसा भी वसीले के साथ अल्लाह से मिलते हैं। अगर जनाबे मूसा बगैर वसीले के अल्लाह से मिलते तो तजल्ली परवरदिगार के बाद हजरत मूसा बेहोश ना होते। हजरत मूसा का बेहोश होना इस बात की दलील है कि मूसा भी तजल्ली परवरदिगार को बर्दाश्त नहीं कर सके। और जमाना जिसे तजल्ली परवरदिगार कहता है वो भी तजल्ली परवरदिगार नहीं थी। उसे भी दीदार इलाही न समझा जाए, उसे भी ज़ियारत इलाही न समझा जाए। इस पे एक अलहदा डिबेट हो जाएगी, एक अलहदा मजलिस हो जाएगी कि जो मूसा पे तूर पे तजल्ली आई थी वो तजल्ली की हकीकत क्या थी। अब मौजू ये नहीं है, मौजू है वासिता फैज, ये है वसीला फैज। मैंने लफ्ज कहा है अल्लाह और इनके दरमियान फासिला कोई नहीं, जैसे सूरज के और शुआ के दरमियान फासिला कोई नहीं। कायनात का हर जर्रा अल्लाह से फैज चाहता है, उसे फैज के लिए वासिता चाहिए। वसीला फैज सिर्फ ये है। इसलिए कायनात की हर चीज जिस पे नमाज का हुक्म नहीं उसको भी दरूद का हुक्म है। अगर आपने इसकी एक मिसाल लेनी हो तो आप ऐसे कीजिए कि आप किसी प्लांट को लीजिए, किसी पौधे को लीजिए और उसे एक कमरे में बंद कर दें और चारों तरफ से दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद कर दें। बंद करने के बाद उसे उस कमरे में रखने के बाद किसी दरवाजे या दीवार में एक छोटा सा सुराख करें, जिस सुराख से सूरज की रोशनी अंदर आ जाए। आप थोड़े दिन के बाद दरवाजा खोलेंगे तो वो पौधा उस तरफ झुका होगा जिस तरफ से वो शुआ आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जिंदगी इस शुआ के साथ जुड़ी है। यही वजह है कि हम लोगों को कहते हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह वासिता फैज का नाम है। अल्लाह को सजदा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक फैज का जिक्र अल्लाह की इबादत में अल्लाह का काम है सिर्फ इरादा करना, तदबीर ये करते हैं। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं। अगर मैं चाहूं कि मैं पानी पीऊं तो मैं पानी का गिलास पकड़ूंगा। मैंने इरादा किया या हाथ ने गिलास पकड़ा। मैंने गिलास के लिए हाथ को हुक्म नहीं दिया, मैंने सिर्फ इरादा किया और हाथ ने हरकत कर दी। ज़हन ने इरादा किया, हाथ ने हरकत की। अल्लाह इरादा करता है, यदुल्लाह हरकत करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मेरे इरादे और मेरे हरकत के दरमियान कोई फासला था? इधर इरादा हुआ, उधर हरकत हो गई। इसलिए कि कभी भी इरादा तदबीर के साथ कोई फासला नहीं रखता। अल्लाह का काम है इरादा करना, 14 का काम है तदबीर करना। करता है ये तदबीर करते हैं। जब मेरा 12वां जमाने में तशरीफ लेके आएगा
तो मेरा मालिक अपनी पूरी तदबीरों के साथ आएगा, मुदब्बिर अल अमूर बन के आएगा। मुदब्बिर अल अमूर इस तरह बन के आएगा कि फिर कायम के ज़हूर की अलामात में से आज लोग ये कह रहे हैं, आज चंद नादान इस गलत फहमी में हैं, हम 12वें के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, हम ज़हूर की तैयारी कर रहे हैं। जाहिलो, तुम इस काबिल कहां से हो गए? तुम्हें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि तुम कह सको कि हम इमाम के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं? इमाम को तुम्हारे हमवार किए हुए रास्ते की जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए अपने आप को नुसरत के लिए आमादा करो, तुम्हें चाहिए अपने आप को इमाम के ज़हूर के लिए आमादा करो। ज़हूर की तैयारी तुमने नहीं करनी, ज़हूर की तैयारी परवरदिगार आलम ने करनी है। ज़हूर का वक्त भी मुकर्रर है, जब इमाम ज़हूर फरमा देंगे तो इमाम के ज़हूर में से है कि इमाम की सदा पे लब्बैक कहने वालों को मौला इतना इख्तियार दे देंगे, इतना इख्तियार दे देंगे जितना नबियों के पास इख्तियार है, आज तक ये समझ रही है कि आले मोहम्मद ये करते हैं या नहीं करते। जब मेरा कायम ज़हूर फरमाएगा तो जो उसकी सदा पे लब्बैक कहते हुए पीछे चलेंगे, अल्लाह उनको भी इतना इख्तियार दे देगा कि वो भी जो चाहे वो कर सकते हैं। करार को आने, जानशीन करार को आने तो दो, मौलवी पे मौलवी काटेगा। कायम का ज़हूर दर हकीकत निफाज विलायत अमीर अल मोमिनीन है। विलायत अमीर अल मोमिनीन को अमलन नाफज कर दिया जाएगा। बेशक कायम के ज़हूर में जो कहते हैं कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो दुनिया को आदल से भर दिया जाएगा। आदल का मुराद है अमीर अल मोमिनीन की विलायत। जब कायम का ज़हूर हो जाएगा तो इमाम के ज़हूर के बाद सबसे ज्यादा अक्सरियत जो सबसे पहले इमाम के लश्कर में शामिल होगी वो एक बहुत बड़ी जमात ईसाइयों की होगी। अब आप मुझ पे सवाल कीजिए कि ईसाइयों ने सारी जिंदगी तो कलमा पढ़ा नहीं और इमाम के लश्कर में कैसे शामिल हो गए? जब वो ईसा को सजदा करता हुआ देख लेंगे, अब वो शक की हालत में नहीं रहेंगे, वो फौरन सर सजदे में रख देंगे कि हमारा नबी जिसके आगे झुक रहा है हमें भी उसी के पीछे झुकना है। इमाम से किसी शख्स ने पूछा था कि मौला इंसान की रूह की सबसे बड़ी निजासत कौन सी है? फरमाया शक की निजासत। कभी भी हमारे इख्तियारात, हमारी विलायत, हमारे तसर्रुफ पे शक ना करना। अगर आप कहें तो मैं हवाला दिखाने के लिए तैयार हूं। इमाम फरमाते अगर तुम्हारे सामने हमारे फजाइल पढ़े जाएं, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम हमारे फजाइल पे शक करो। जो भी फजाइल तुम्हारे सामने पढ़ा जाए उस पे शक नहीं करना, हमारी फजीलत हमें लौटा देना। तुम्हें इस काबिल समझेंगे तो तुम्हें मार्फत दे देंगे, वरना अपनी फजीलत तुमसे वापस ले लेंगे। तो भाई कायम के आने के बाद अब ये सवाल इमाम से पूछने की जुर्रत करना, इमाम के सामने आके कभी ये सवाल पूछने की जुर्रत करना कि मौला बताइए आपके दादा की विलायत कब से है? बिल्कुल ये सवाल इसी तरीके से फजूल है, ये जाहिलाना सवाल है कि अली वलीउल्लाह कब से शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बंदा कहे कि ला इलाहा कब से शुरू हुआ है। जब से ला इलाहा इल्लल्लाह है तब से अलीयुन वलीउल्लाह है, क्योंकि अल्लाह इरादा है, अली उसकी तदबीर है। शिर्क वो करता है जो अली के साथ किसी को शरीक करता है।
के नुमाइंदे के साथ किसी को नुमाइंदा मान लिया, वाह 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 शिर्क क्या है? वाह वाह अल्लाह जैसा कोई नहीं, तो आपको क्या पता है कि अल्लाह कैसा है? वाह 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 आपके पास तो अल्लाह के नुमाइंदे आए हैं, बेशक अगर आपने नुमाइंदे के मुकाबले में नुमाइंदा बना लिया, अगर आपने रहबर के होते हुए रहबर बना लिया, अगर आपने वली के होते हुए वली बना लिया, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जुमला कहना पड़ रहा है, अगर आपने इमाम के होते हुए इमाम बना लिया, समझ लीजिए कि आप शिर्क की निजासत में हैं। जितने भी पूरी दुनिया में मोमिनीन इस मजलिस को इसी लम्हे ऑनलाइन सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कसरत की तरफ ना देखिएगा। अगर इमाम के ज़हूर में निफाज विलायत अमीर अल मोमिनीन है, तो किसी भी किताब में नहीं लिखा कि इमाम जब दुनिया में जाहिर होंगे तो इमाम के साथ एक बहुत बड़ा लश्कर इमाम की सदा पे लब्बैक कहेगा। नाजरीन थोड़े हैं, फिन्नार होने वाले ज्यादा हैं। तो जहां कसरत देखो तो समझ लेना कि ये तादाद वो है जो फिन्नार होगी। इमाम की पहली सदा पे जो लोग इमाम को लब्बैक कहते हुए निकलेंगे, वो मोहल्लों से नहीं निकलेंगे, कोई जंगलों से, कोई तन्हाइयों से, नशीलियों से। ये वो लश्कर है जो इमाम की सदा पे लब्बैक कहता हुआ आएगा। जैसे जैसे हम कायम के ज़हूर के करीब होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इमाम के मखसूस नासरीन पे घेरा तंग कर दिया जाएगा, क्योंकि शैतान की मुकम्मल कोशिश है कि वो ज़हूर के रास्ते को रोके। उसे खबर है कि कायम दुनिया में अदल का नाम नहीं, इब्लीस की मौत का नाम है। वो अपने मौत के डर से इमाम के रास्ते को रोक रहा है, और उसके चेले, उसके नुमाइंदे आज भी इमाम के ज़हूर को इसलिए रोक रहे हैं, उन्हें खबर है कि हमारे बाप की मौत आ रही है। दुश्मनों पे लाने झूठे की हाँ एक खासियत मेरे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये होती है कि वो अपने ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर उंगली जरूर उठाता है। यही वजह है कि आज हमसे सवाल करने वाले लंबे सवालात इसलिए करते हैं कि हम जवाबात में उलझ जाएं और हम उनसे उल्टे सवाल न कर सकें। आपने हमसे बड़े सवाल कर लिए, अब आप ही हमें बता दें कि मज़हब आले मोहम्मद की किताबों में वो कौन से लोग लिखे हैं जिनके बारे में हदीस है कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे और एक कसीर तादाद जो है वो इमाम के हाथ से तलवार से अपनी गर्दनें कटवा लेगी, कटवाने के लिए गर्दनें आएंगे, वो कोई आम लोग नहीं होंगे, बल्कि इमाम के सामने खड़े होकर कहेंगे हम जो फिका को चला रहे थे हमें आपकी हम पे
پہ سوال کرنے والے ہمیں اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کون سی نہر ہے جو لہو سے بھر جائے گی؟ ہمیں یہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ ہمیں مہدی سے نکال کے مہدویت کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یقیناً شیطان کے پاس پورے حربے ہوتے ہیں، طاقت اس کے پاس پوری ہوتی ہے، وہ اپنی پوری طاقت آزماتا ہے۔ آج بھی اس کے پاس حکومتیں ہیں، اس کے پاس لشکر ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے مکمل اختیارات کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہے جو اس کے اس منصوبے میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ اختیارات چاہیے، نہ حکومتیں چاہیے، نہ وسائل چاہیے، ہمیں صرف یہی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس علی کی ولایت ہے اور قائم کا انتظار ہے۔ متمسک رہیے گا، امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ متمسک رہیے گا۔ اس کی قیمت آپ سے سر مانگی جائے تو دیجئے گا، اولاد مانگی جائے تو دیجئے گا، جلا وطنی مانگی جائے تو دیجئے گا، غاروں میں پہاڑوں میں جانا پڑے تو چلے جائیے گا، لیکن علی کی ولایت کے ساتھ متمسک رہیے گا۔ ظہور کے قریب آگے حالات مزید سخت ہوں گے۔ یہ دور استقامت کا دور ہے۔ اب یہ بات سے نکل آئیں فلاں کو ٹھیک کریں، فلاں کو ٹھیک کریں، اپنے رستے کو بہتر کریں۔ ڈوبتی ہوئی کشتی میں لوگوں کو وہی بچاتا ہے جو پہلے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ کیا بات، شیطانی لہریں، شیطانی موجیں تلاطم خیز ہیں، ہمیں سفینہ قائم کی تلاش ہے۔ ہمیں ان لہروں کے بہاؤ کو کاٹ کے قائم کے سفینے کی طرف بڑھنا۔ اگر اس دور کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو پروردگار نے اپنے ذمے لیا ہوا، میرے خدا کی آواز آتی ہے قرآن میں، وہ کہتا ہے فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، انتظار کرو تم بھی کیونکہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر خدا انتظار کر رہا ہے تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک اسے بھی قائم کا انتظار ہے، ہمیں بھی قائم کا انتظار ہے۔ اگر بات وصول کر لی جائے تو وہ بھی قائم والا ہے، ہم بھی قائم والے ہیں۔ ایک طرف لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا لشکر، طاقت، حکومتیں، وسائل، جنگی سامان، موت کا ڈر، خوف، پہرے، منافقت، کوفے کی خاموشی، دارالامارہ کے لیے سر چاہیے، سولی کو میس میں تمار چاہیے، تلواروں کو مختار چاہیے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے۔ لوگ جینے کے لیے جیتے ہیں، ہم مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ سانسیں امانت ہے قائم کی۔ 3 مجلسوں کا ایک ہی خدمت جو کی اس کا صلہ مانگتا ہوں۔ اگر صلہ دینا چاہیں تو یہ صلہ دیجئے گا، امیر المومنین کی ولایت سے دھوکہ نہ کیجئے گا، سیدہ کی طرفداری نہ چھوڑیے گا، اور قائم کا انتظار نہ چھوڑیے گا۔ یہی ہمارے پاس ہے۔ اعمال کا دامن بہت ہلکا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ عقائد کے موتی جتنے سمیٹ سکے اتنے سمیٹیں۔ اس گھر کی 18 سال کی بطول بھی روتی رہی، اس گھر کی 4 سال کی بطول بھی روتی رہی۔ آج اس امام بارگاہ میں اس معصومہ شہزادی کا تابوت پڑا ہے جسے میرے کریم حسین نے نماز شب میں اللہ سے رو رو کے مانگا تھا۔
नाम माँ के नाम पे फातिमा रखा, लकब सकीना पड़ गया, सुकून देने वाली, तस्कीन देने वाली। करीम करबला कहते हैं मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता जिस घर में मुझे सकीना नजर ना आए। रसूल की बेटी भी फातिमा, हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी भी फातिमा, दोनों फातिमाओं का मुकद्दर अजीब। उसे भी बाप के बाद नहीं रोने दिया, इसे भी बाप के बाद नहीं रोने दिया। वो भी बाप के बाद छुप के रोती थी, ये भी बाप के बाद छुप के रोती थी। उसका नाम भी फातिमा, इसका नाम भी फातिमा। वो भी बाबा से बड़ा प्यार करती थी, ये भी बाबा से बड़ा प्यार करती थी। अगला फर्क सदा से माफी मांग के वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा। वो 18 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के तवीज़ हुसैन। तस्कीन कल्ब हुसैन, मेरी वो शहजादी जिसे करीम ने नमाज शब में मांगा, अल्लाह के हजूर दुआ की, मेरे अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। फिर शहजादी को उन जंगलों से गुजरना पड़ा, उन बाजारों से गुजरना पड़ा। 11 मुहर्रम को जब काफिला कूफा के लिए जा रहा था, रो के सैयदुल साजिदीन के कदमों में बैठ के कहती है, बाप के कातिल से कहे मुझे इतनी इजाजत दे, मैं एक बार बाप की लाश पे रो लूं। करबला से काफिला चलता है, इस छोटी शहजादी के हाथ में छोटी छोटी रस्सियां आ जाती, काफिला कूफा की तरफ जा रहा है। करबला में सिर्फ माँ नहीं आई थी, माओ की गोद में बच्चे भी थे। जब माओ के हाथ रस्सियों के साथ बांध दिए गए तो बच्चे गोद में नहीं थे, माँ की गर्दनों के साथ थे। रेगिस्तान का सफर था और रेत में जब ऊंट को दौड़ाया जाता था, ऊंट दौड़ता, बच्चे के हाथ माँ के गले से निकलते, बच्चा रेत में गिरता और पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने में आ जाता। माँ रो के कहती है, अकबर का सदका, असगर का सदका, हुसैन का सदका। बच्चे गिरते गए, अली की बेटी गिनती गई, बच्चे गिरते गए, अली की बेटी गिनती गई। एक ऐसा मकाम आया है जहां पे सैयदुल साजिदीन ने काफिले को रोक दिया। एक मलाउन करीब आके कहता है, मुसाफिर कहती, अली इब्न हुसैन तूने काफिले को रोक क्यों दिया है? इतना कहना था या सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं बढ़ेगा? फरमाया काफिले को रोक, मेरे काफिले से कोई गिर गया है। इतना कहना था, वो मीना कहका मार के कहता है, इससे पहले भी बच्चे गिरते गए हैं, उससे पहले तो तूने काफिला नहीं रोका। मौला सज्जाद रो कहते मेरी मजबूरी है, पहले मेरे बेटे गिरते रहे हैं, अब हमारी बेटी गिर गई है। अब सैयदों की गैरत का मसला है। सैयदा आलिया की आवाज है, सज्जाद काफिले से कौन रह गया? आवाज है, अम्मा हुसैन की बेटी सकीना गिर गई है। सकीना का नाम आना था। अली की बेटी की चीख आई, आवाज आई, हाय कहाँ है मेरे हुसैन के सीने का तवीर? या मलाउन ने कहा, सज्जाद तू काफिले को यही रोक। इन्होंने घोड़े को दौड़ाया, जब देखा एक रेत के टीले पे सहमी हुई हुसैन की बेटी बैठी थी। इनको करीब आते हुए देखा, जल्दी से उठ के खड़ी हो गई। देख के कहती, मैं काफिले से बिछड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे एक बार थोड़ी देर यहाँ रहने दो। कहने लगे क्या करेगी? कहने लगी मैं काफिले पे जहाँ कहोगे वापसी में पैदल काफिले के साथ मिल जाऊंगी। उन्होंने कहा तू यहाँ रुक के करेगी क्या? रो कहती, यहाँ रुक के इंतजार करूंगी, यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, कहूंगी मैं सैयदजादी हूँ, मुझे खुम्स में एक चादर दे दो। कह लगे चादर लेके क्या करेगी? रो के कहती, सीधी करबला जाऊंगी, अपने बाबा को कफन पहना के आऊंगी, मेरे बाबे की लाश धूप में बगैर कफन के पड़ी हुई है। इतना कहना था, ये मलाउन घोड़े से नीचे उतरा। सादात मुझे माफ कीजिएगा, इसने मासूमा को घोड़े में बिठाया नहीं। ये देख के कहने लगा हमारे घोड़ों के आगे दौड़। शहजादी कभी गिरती थी, कभी उठती थी। ये करबला का सफर, ये शाम का सफर, शाम के बाजार,
इतना रोती थी बाबा को याद करके, इतना रोती थी, इतना रोई है मासूमा कि दरबार में जब बुलाया गया और बुलाने के बाद पहली दफा शहजादी, पहली दफा, खुदा लानत करे इन बादशाहों पे, इन्होंने हर दौर की फातिमा को दरबार में खड़ा किया। कई घंटे चुप करके खड़ी रही। ये मलाउन तख्त पे बैठ के कहने लगा, ये बच्ची कौन है? कहने लगे ये हुसैन की बेटी है। कहने लगा मुझे करबला से पता चला है कि जब हुसैन को कत्ल किया तो कोई बच्ची बाप के पास थी, वो कौन थी? कहने लगे ये वही है। ये देख के कहता बच्ची मेरे करीब आ, शहजादी तख्त के करीब आई। ये देख कहता मन अंते तू कौन है? रो कहती है ना फातिमा बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी फातिमा। कहने लगा तुझसे तेरा बाप बड़ा प्यार करता था? फरमाया मेरा बाबा मुझसे बड़ा प्यार करता था। कहने लगा अपने बाप की कोई बात सुना। शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा कोई बात सुना? शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने कहा मैं पूछ रहा हूं ये बच्ची बोल क्यों नहीं रही? एक सिपाही करीब जाने लगा, सैयदुल साजिदीन ने कहा करीब ना जाना। कहने लगा हमारा हाकिम बुला रहा है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? मौला सजाद रो के कहते मेरी बहन बोल रही है, उसके गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुन। इसके गले की रस्सी। ये कमीना करीब जाने लगा, या मौला सजाद की आवाज है करीब ना जाना, हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा। कहने लगा फिर रस्सियां खोल। फरमाया मैं खोलता हूं, मैं भाई हूं। किसी का तेरे तो अपने हाथ बंधे हुए हैं। सैयदुल साजिदीन ने अपने हाथों को आगे किया, इसने मौला सजाद की कड़ियां खोली। खुले हुए हाथ 11 मुहर्रम को सजाद ने देखे। बहन का चेहरा हाथों पे लेकर तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां पहले खुलवा ली। मासूमा ये जो पूछता इसे बता। ये देख के कहने लगा अपने बाप की कोई बात सुना। बीबी रो के कहती जब हम मदीने में रहते थे, मेरा बाप सुबह की नमाज के बाद घर में आते थे। मेरा बाबा मदीने की अरब की ताजा खजूरें लेके आते, मैं जहां सोई होती मुझे उठाते, मुझे सीने पे लिटाते, अपने हाथों से मुझे मदीने के खुरमे खिलाते। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं, जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने पिया कुछ नहीं। ये देख कहता हमने जुल्म तो बड़ा किया है, लेकिन अगर तू कहे तो मदीने की खजूरें तो मेरे दरबार में भी हैं। मासूमा ने कहा कहाँ है? इसने कहा ये मेरे तख्त के पास ये तश्त पड़ा है, इसके ऊपर सफेद रुमाल है, इसके नीचे मदीने के खुरमे हैं। क्या तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है? अगर मैं तुझे दिखाऊं तो पहचान सकती है कि क्या ये मदीना के खुरमे हैं? सैयदा ने सैयदुल साजिदीन को देखा, मौला सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ। मासूमा चलती चलती तश के करीब गई। बीबी ने कांपते हुए हाथों से तश से रुमाल हटाया। रुमाल का हटाना था, नीचे खजूरें नहीं, बाप का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी, जल्दी से अपनी कैदी हाथों में बाबे का सर लिया। रो के दी बाबा आंखें न बंद कर, बाबा आंखें खोल, मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान थे। कैद में शहजादी मुसलसल बाबा को याद करके रोती रही। इतना रोई कि एक रात ये मलाउन अपने हुजरे से निकल के दरबार में आ गए। इसने सिपाहियों से कहा इस बच्ची को चुप करवाओ। सिपाही जिंदान के दरवाजे पे जाकर अली इब्न अल हुसैन, हमारा हाकिम कहता है अपनी बहन को रोना बंद करे। मौला सजाद कहते हैं मेरी बहन रोना बंद कर देगी। एक काम करो, कहीं से मेरे बाबे हुसैन का सर ला दो। सर का नाम आना था। सिपाही देखेगा लगा सर इस वक्त नहीं मिलेगा। फरमाया जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये रोएगी। उसने कहा सर संदूक में है। संदूक किसी कमरे में है, उसकी चाबी सिपाही के पास है, जिसके पास है वो घर चला गया है। आधी रात को उसे उठाएं, वो दरवाजा खोले, फिर संदूक का ताला खोले, फिर तेरे बाबे का सर मंगवाए। मौला सजाद की आवाज आई हम तालों के मोहताज नहीं। इतना कहना था मौला सजाद की आवाज, सकीना ये हमसे अपना इख्तियार हमारा पूछ रहे हैं, हम अपना इख्तियार दिखाएं। एक बार अपने बाबा को आवाज दे। तड़पती हुई मासूमा चलती हुई आई, जेल की सुलाखों पे अपना सर रखा, सर रख के रोक दी। बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है, बाबा तेरी मासूमा तुझे बुला रही है, बाबा
तेरे सीने का तवीर तुझे बुला रही है। बीबी सकीना ने 3 बार सदा दी, या संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन बाहर आया, छत को फाड़ता हुआ सरे हुसैन प्रवास करता हुआ जो ही जिंदान की छत पे आया। मासूमा ने आता हुआ बाबे का सर देखा, रो कर दी, अम्मा देख मैंने बुलाया, मेरा बाबा हुसैन आ गया। मासूमा ने जल्दी से अपने जले हुए कुर्ते को फैलाया, रो कर दिया, बाबा तेरी सकीना तेरा सर लेने के लिए तैयार है। सरे हुसैन प्रवास करता हुआ मासूमा के हाथों पे आया, जल्दी से बाबे का सर अपने सीने से लिया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया, दाढ़ी चूम के कहती, बाबा तेरे बाद तेरे कातिलों ने मुझे बड़ा मारा है, बाबा तेरे बाद तेरे दुश्मनों ने मुझे बड़ा मारा है, बाबा देख मेरे हाथों में कड़ियां, बाबा देख मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान, बाबा देख मेरे कानों के जेवर भी लूट लिए गए। अभी बीबी ये बातें कर रही थी, ये मौला सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी मासूमा जिंदान में मर गई। जिंदान में मासूमा को गुस्ल के लिए पानी ना दिया गया, कफन के लिए कपड़ा ना दिया गया, उसी कुर्ते के साथ हुसैन की शहजादी को दफना दिया गया। आखिरी सतर पढ़ूंगा, इसी सतर पे मैं आज के मुसाहिब का इख्तिताम हो जाएगा। किताबें कहती हैं कि जब मासूमा को दफनाया गया, ये अल्लाह की कायनात में वाहिद शहजादी है जिसके कब्र में भी जेवर नहीं उतरे। मासूमीर से मरवी है कि क़यामत के मैदान होगा, क़यामत के मैदान में जब अंबिया खड़े होंगे, यकदम एक चीख आएगी, हाय गुर्बत। आवाज परवरदिगार है, ये आवाज किसकी है? फरमाया ये अली की आवाज। फरमाया अली तू तो मेरा शेर है, तूने नबियों के सामने क्यों कहा है मेरी गुर्बत? फरमाया मेरे अल्लाह गुर्बत देख, हर कोई कफन समेत उठ रहा है, वो देख करबला में मेरा बेटा बगैर कफन के उठ रहा है। अभी हुसैन बगैर कफन के आएंगे, ये आवाज आएगी हाय गुर्बत। आवाज आएगी, अब किसकी आवाज आई? आवाज आई अब ये हुसैन की आवाज है। आवाज परवरदिगार आएगी, हुसैन तेरे लिए तो अली ने गुर्बत की आवाज दी थी, अब तू हाय गुर्बत क्यों कह रहा है? फरमाया उसका तो बेटा बगैर कफन के उठा था, वो शाम की तरफ देख मेरी बेटी बगैर कफन के उठ रही है। आखिरी जुमला पढ़ के यहीं पे मातम की सदा होगी, इस मासूमा के हाथों की रस्सियां नहीं खोली गई, ये हाथों की रस्सियों के साथ दफन हो गई। मेरे इमाम से पूछा गया, मौला वो जो 14 साल का कैदी था उसके हाथों के जेवर उतर गए थे, आखिर शाम में क्या मजबूरी थी, तेरी मासूमा के हाथों की रस्सियां क्यों नहीं उतरी? इमाम का सरे मुबारक दीवार के साथ लगा। फरमाया मेरा सलाम हो उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे, जिसकी कलाइयों के जोड़ टूट गए थे। अगर सज्जाद रस्सियां खोल देते, मासूमा की मैयत ऐसे बिखर जाती जैसे करबला में कासिम की लाश बिखरी थी। सज्जाद को मासूमा ऐसे दफनानी पड़ती जैसे करबला में कासिम को दफनाना पड़ा था। मातमे हुसैन। यादाने बहुत सताया मैनू वीरणे तेरियां यादाने बहुत सताया मैनू वीरणे तेरियां
यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है एक ख्वाब न रोने नी मानी नू आए ओने जगाया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है एक ख्वाब न रोने नी मारी नू आए ओने जगाया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है कई रातां तो आए जागती मैया बाबे भाई मैं सोचती मैया हर चीज तो शुरू हो गए हर चीजें खत्म होया कई ख्वाब आया मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है कई रातां तो आए जागती मैया मैं सोचती मैया हर चीज तो शुरू हो गए हर चीजें खत्म होया की ख्वाब आया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है कदी उठता सी आए कदी गिरता सी आए लब जपेता जब जाने केड़े होने मेरे बाते दी अखियां दा आए नूर गवाया वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया है वीरणे तेरियां तेरियां यादां ने बहुत सताया कभी उठता सी आए कभी डिगता सी लफ्ज़ पे
ने बहुत सताया है मैनू वीर ने तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीर ने तेरियां यादां ने बहुत सताया है कई रातां तो आए जागदी मैया रही सोचती मैया हर चीज शुरू हो के हर चीज खत्म होया ठीक आया मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया है एक ख्वाब डरोने ने ईमानी नू हस्ते जगाया है मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया 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 है वीर मेरा हाय कदमी मेरा ना वेखे तेरे ख्वाब दे विच तेरा एक पुतले दी मैया ते हाय बाबे सुनाया वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया है मैनू वीर तेरियां यादां ने बहुत सताया या हुसैन 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 हुसैन या 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 हुसैन सीना नहीं लबदा जो बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लबदा 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 बाबा मैं रुल गईया भूल गईया तेरा सीना नहीं लगता जो मैं भूल गईया तेरा सीना नहीं लगता
तेरा सीना नहीं लभदा बाबा भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा भुल गईया मैं कुछ शाम दे लोका ने तड़वाद कहीं सी चुम गया मैं कुछ शाम तेरा सीना बाबा भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा भुल गईया तेरा सीना बाबा मेरे मर नहीं यतीमी पहला पुरसा तेरा सीना नहीं लभदा तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया मैं कुल्ला रंग जिंदान दे ਜਦੋਂ ਅੱਖਰੀ ਕਾਇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆ लभदा बाबा भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा जो बाबा मैं भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया दरगाह चलिया मैं खोल तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया मैं कुशाब तेरे बाप कबीजी मैं कुशाब दे तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया मर नहीं यतीमी सीना नहीं लभदा बाबा मैं भुल गईया सीना नहीं
لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا آخری قید دا حکم ہویا میں کو کلیا تنگ زندان دے جدوں آخری قید تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا میں کو شام دے لوکاں نے تیرے بات کری دی وچ منگیا بابا میں کو شام دے لوکاں نے بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ بابا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ نہیں بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا سکینہ 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 عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين ويا سيد المرسلين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أبا عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين السلام عليك يا سير كوفة والشام لعن الله أمتك قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر شهيد الرياض
السلام عليك وعلى أختك زينب ورقية وسكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلطان يا ربي والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي أجل الله تعالى فرجك وفعل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ومحبين جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen.